Okay, students, I have taken one more question for you. Using elementary transformation, find A inverse. A is given 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2. You know the elementary transformation. There are two types of elementary transformation: elementary row transformation or elementary column transformation. So here nothing is written. So you can use any of the transformation. So B will do this question with the help of elementary row transformation. So if we do this question with the help of elementary row transformation, then write A equal to IA. And if you want to use column transformation, then you will write A equal to AI. But maximum question we do with the help of this A equal to IA, that is row transformation. So what is A? Write here as usual 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2. I means identity matrix of same order 1 0 0 then 0 1 0 0 0 1 into A. So no need to write this A in numerical form, only write symbolic form. And you all know, in case of elementary row transformation, when you use the operation, you will use in a prefactor. So that is why we have written prefactor and no need to write post factor in numerical form. So now what should be your target? Your target is that make this equation in the form of I equal to B into A. That is product of two matrix equal to I. Then you can say one is called the inverse of other. So our main target is to make this matrix as a identity matrix. So how we will make this matrix as identity matrix? You know, by using the operations. There are three operations: elementary row operation. You can interchange any two rows, or you can multiply any row by a constant, or third one is that you can add equimultiple of any other rows or column in a given row. So how we start it? Our main motive is to make this matrix as a identity matrix with the help of elementary transformation. So in identity matrix, our first target is to make this element 2 as a 1. So how we can make? Either by multiplying by 1 by 2 both sides, this become 1, or try to avoid the fraction, because if you divide by 2, means multiply by 1 by 2, this become minus 3 by 2 and 5 by 2. So your calculation become little bit difficult. So what you will do, think of other operation. So other that we can interchange these rows. Which rows? First and third. See here, because here is already 1. So write here operate, you can write, or R1 interchange with R3. So use this operation, operate R1 interchange R3. So you will use this relation both sides. So this can be written now 1 1 minus 2 and then 3 2 minus 4 and then 2 minus 3 5 is equal to again 1 0 0 0 1.
So see here, here you will write first row. Please keep this thing in mind. So this becomes 0 and this become 1. That is 0, 0, 1 first. No change in second row. 1, 0, 0. Like this into A. Okay, students. Now here is 1. So our now second target is to make this element 0 as well as this element 0. So we will use two operations simultaneously. We will make this 3 0 with the help of first row. Clear or not? How? We can write R1, R2, ऑपरेट करना है R2 को, that is R2 minus what? 3 टाइम R1. R2 को ऑपरेट करेंगे R2 minus 3R1. इससे क्या होगा? 3 minus 3, this become 0 and also use here 0. अब इसका भी टारगेट यही है. क्यों 0 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो here is also 0 in identity matrix. तो another operation that is R3, operate R3, R3 minus 2 what? R1 with the help of R1. Please note this point is very important to make this 0 with the help of this 1. So simple operation that R2 minus 3R1 and here also R3 minus 2R1. ये बेटा हर क्वेश्चन में इसी तरह से रहेगा. जब 1 बन जाएगा या चाहे जो मर्जी होगा, आपका ऑपरेशन इसी टाइप से यूज होंगे. ठीक है, डिपेंड अपॉन दिस नंबर मीन्स R2 माइनस के टाइम्स सम R1 और R3 माइनस के टाइम्स सम R1. मे भी प्लस भी हो सकता है अगर साइन इसके डिफरेंट हो. ओके, सो आफ्टर यूजिंग दिस ऑपरेशन you will write what? See, 1, 1 minus 2. No change in first row. But second change, 3 minus 3, 0. 2 minus 3. Because हमने first को 3 से multiply कर रहे हैं. So 2 minus 3, minus 1. And then here, minus 4 plus 6. 3 to just 6. So plus 6, that become 2. And on the same way, this become 0 because 2 minus 2, 0. Minus 3 minus 2, you will get minus 5 and here minus, 9. Because 5, 2 to ja 4, 5 plus 4 minus कर रहे हैं. So on the same way, here also use same way. No change in first, 0, 0, 1. But second will change. R2 minus 3 times this, so 0 minus 0 is 0 and then 1 minus again 0 is 1 and 0 minus 3. And देखो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 minus 3. So you will get minus 3 and then next last third row R3 minus again 0, 1 minus 0 is 1, 0 minus 0 is 0 and 0 minus 2, that is minus 2. So you will get 0, 0, 1, 0, 1 minus 3 and 1, 0 minus 2 and here A as usual. Clear? So now one more point. Now your target is, देखिए बेटा जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूल है, यहाँ 1, 0, 0. अब आपने यहाँ नहीं जाना, हमेशा ही इस एलिमेंट पे आना है. ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा अब आप इस एलिमेंट पे आएंगे. देखो मैं रूल दे रहा हूं आपके पास फॉर्मेशन का. फर्स्ट मेक दिस 1, देन दिस 0, देन दिस 0. अब सेंटर वाला एलिमेंट, इसको क्या बनाना है? 1. तो ये आपके पास अब एक ही ऑपरेशन लगेगा. तो इसको 1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो जाएगी बात. तो क्या लिखेंगे? R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस व्हाट? नो, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा. तो क्या लिखेंगे? R2 माइनस 1 इंटू R2. आपके पास ऑपरेशन है, ये है सेकेंड ऑपरेशन है कि यू कैन मल्टीप्लाई बाई एनी रो बाई अ कांस्टेंट. सो
you will get now no change in first 1 1 minus 2. This becomes 0 1 and minus 2. Opposite in sign, minus multiply minus minus plus, and this become minus. And no change in third, 0 minus 5 9, and here it is equal to what? First row no change, 0 0 1, and here 0 1 minus 3. Sorry, this will change, minus से multiply किया तो ये minus 1 and plus 3, and 1 0 minus 2. No change in third row, and here is A. Clear? तो only सेकेंड रो में हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया और ये minus 2, और यहाँ -1 और +3. See here. Okay students, now our next target is this element should be 0. देखो फर्स्ट ये 1 हो गया, फिर 0, फिर 0, फिर 1, अब इसका नंबर आ गया 0. तो हाउ यू विल मेक इट 0? Always with the help of this second row, because here is 1, here is -5. So you will add these two rows, multiply this second row by 5. Means you will write operate which third row R3. R3 is equal to what? R3 plus 5 times R2. ठीक है क्या नहीं? इसमें 5 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5 हम यहाँ से इसको, इसलिए सेकेंड रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब सारा यहीं से पता चलेगा आपको. सो यू विल राइट नाउ व्हाट यू विल गेट. नो चेंज इन फर्स्ट रो, दैट इज 1 1 and -2. No change in that. And second row also no change, 0 1 -2. And in third row now this becomes 0. Clear or not? 0 minus 5 become 0. And then further 9. 9 means again 5 to the 10. So 9 minus 10, that become -1. So this become -1 is equal to, now come to here, no change in first and second row, that is 0 0 1, and here 0 -1 3. And now third row will become, again with the help of second, this become 1 -5 and 13. Because how it is this? 1 minus this or plus 5R2, what you will get? 1 into ये तो 0 ही बनेगा, 1 plus 0 0, and here 0 plus 5, and और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 जा 13, so -2 plus 5 3 जा 15, so -2 plus 15, that is equal to 30. Okay students, so now our next target is, now this number is 1 0 0 1 0, and this should be 1. So to make this number 1, mean multiply this third row by minus sign. So that is why I have written R3 minus 1 into R3. So what you will get, no change in first row, 1 1 -2, and then 0 1 -2, and at last 0 0 1. And here as usual, first row no change, 0 0 1 0 -1 3, and change the sign of this third row. So this become -1 plus 5 and minus 13. And here write A. Here also write A. Okay. Okay. So now your next step is,
देख लो बेटा, डायगोनल 1 1 हो गया और एक साइड तीनों जीरो आ गए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, पहला स्टेप था 1, फिर 0 0, देन 1 0, अब आप 1 पहुंच गए, अब यहाँ 0। ठीक है, तो इसको 0 बनाना है और दोनों को एक साथ 0 बनाना है, इसको भी और इसको भी 0। दैट इज बोथ एलिमेंट को एक साथ 0 बनाना है। किसकी हेल्प से? हम बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। टू मेक दिस -2 0 एंड -2, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को, फर्स्ट में ऐड कर देंगे और सेकंड में भी। तो क्या लिखेंगे, दोनों का ऑपरेशन साइमल्टेनियसली यूज करेंगे। R1 प्लस 2 टाइम R3, ये हर जगह बेटे थर्ड रो के साथ ही 0 बनाना है। ठीक है, बस इजली रहेगा, आपको कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब क्रैमिंग की या डिफरेंट वे से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ R2 plus twice of R3. So now see what you will get. First में now first and second row will change, no change in third row. So first row with the help of third, here is 0, so no effect in 1. Here is also 0, so 1 plus something, that is again 0, 1. So now -2 plus 2, this becomes 0. Here also 0, 0 minus something, 0 plus 1 plus something. तो ये 1 है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी, इसी में चेंज आएगी क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ तो 0 थे ऑलरेडी। सो -2 plus 2 अगेन 0, सो दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, दिस बिकम 1। क्लियर? ओके, तो आगे चलेंगे। इज इक्वल टू नेक्स्ट, देखो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या था, फर्स्ट रो चेंज करेगी। अब क्या बनेगा इसमें, ध्यान देंगे फोकस होकर के, क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेज आएगी। अब मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R3 को और R1 में ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 0 + 2 बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा -0 -2, तो -2। क्लियर? हियर इट बिकम 5 2 जा 10, और इसको 2 से करेंगे तो -26, एंड हियर इज 1, सो दिस बिकम 1 - 26 मीन्स -25। देन सेम वे पे R2 + 2 से कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही आएगा, -2 -1, 5 2 जा 10, दिस बिकम 9 मीन्स -1 + 10, and here it become 3, and this become 26, 3 - 26, that is -23. And here what you will get in third, no change, -1, 5 -13, and this one is A. Clear? तो बेटा ये स्टेप, इस साइड जो वर्क है यहाँ तो हमें पता लगता रहता है, क्योंकि हमने किसको 0 बनाना, किसको 0, तो यहाँ गलती के चांस कम रहते हैं, ऑपरेशन इसकी हेल्प से लगते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस हमेशा इधर रहते हैं। तो इसलिए बड़े अच्छे से ध्यान देंगे कि हमने क्या करना है। ओके, तो अब मेरे पास देखो 1 0 0 0 1 0 1 0 0। ठीक है, वे देखते चलो मैं कैसे चला हुआ था। तो अब सिर्फ एक एलिमेंट बच गया 1, और ये एलिमेंट इसी के हेल्प से, R2 की हेल्प से हमेशा 0 होगा। तो क्या ऑपरेशन लिखेंगे, ऑपरेट, क्या करेंगे, R1 कैसे, सिंपल 1 - 1 0 होता है, तो ऑपरेट R1। देखो जिस रो को ऑपरेट करना वो यहाँ लिखनी है, फिर एरो लगाना है, फिर उसी रो को लिखना, और उससे क्या कर रहे हैं हम, R2 को माइनस, तो 1 - 0 क्या बनेगा आपके पास, दैट इज 1 1 - 1 0 0 - 0 0, सेकेंड रो नो चेंज, थर्ड रो नो चेंज। ठीक है, ओके, अब आगे आ जाओ, इक्वल टू, इधर आइए, इधर आपके पास मेन मैंने बताया, गलती का ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम, दिस माइनस दिस, सो -2 -2, माइनस माइनस प्लस हो गया मीन 0, 10 - 9 दैट बिकम 1, -25 + 23 हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं,
तो -25 plus 23, this become 2. Okay, -2, not only 2 but -2, -25 plus 23. Okay, second में no change, -2, 9, -23 and -1, 5, -13 into A. So now student C, हमने क्या किया, यहाँ पर आपके पास I बन चुका, I बन गया तो इसको I लिखो, I इक्वल टू इसको B लिख दो और A. एंड बाय डेफिनेशन हमने प्रूव कर दिया प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू I. सो देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू B. ये बाय डेफिनेशन हो गया. एंड व्हाट इज B? B आपके सामने है, इसको B कहा है मैंने, B इंटू A जो लिखा हुआ है ये आपके पास B था. ठीक है, सो B इज दिस, सो राइट लाइक दिस 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5, -13. Clear? So this one is the way how to find the inverse. क्लियर हो गया. सो बेटा इसका जो एक ही टारगेट है, मैंने स्टेप वाइज आपको डिटेल डिस्कशन बता दी गई है. बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हाउ टू फाइंड द इनवर्स. सो सिंपल वे. Okay students, I will just once again, this one is the question, find A inverse. What we have done, write it in the form of A equal to IA, because I want to use elementary row transformation. If you want to use elementary column transformation, write here A equal to AI. और बीच में बेटा जब रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अब होगी, बीच में मिक्स कहीं भी नहीं आएगी. ठीक है, मैंने पहले भी आपको ये पॉइंट पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था. तो पहले क्या किया देखो, टारगेट एक बार फिर सुन लो. A फर्स्ट मेक दिस एलिमेंट 0 विद द हेल्प ऑफ, कैसे बनाना. अब आपके पास है 3 प्रॉपर्टी है, 3 में से कोई भी यूज कर लो. आप माइनस करके भी कर सकते थे R1 - R2, पर मैंने क्या किया था इंटरचेंज करके. उसके बाद जैसे ही इसको 1 बनाया, उसके बाद आपका टारगेट क्या बताया मैंने, इस 3 को 0 बनाना और 2 को 0. ठीक है, तो यहाँ 2 ऑपरेशन लगाए. R1 की हेल्प से हमेशा ये 0 बनेंगे, R2 - 3 1 एंड R3 को R3 - 2R1. क्लियर. और उसके बाद जैसे ये 0 बन गए, अगला टारगेट सेंटर वाले को ये बनाना था. ठीक है, इसको 0 बनाया. देखो फिर उसके बाद इसी के नीचे वाले को 0 बनाना है. ये देखो इसको जो 1 बनाने के लिए क्या किया, इसको 1 बनाना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई, ये 1 बन गया. और 1 के बाद फिर टारगेट -5 का आ गया कि इसको 0, और ये हमेशा ही बेटा R2 की हेल्प से बनेगा. ठीक है, और उसके बाद आपके पास जैसे ही ये एलिमेंट 0 हो गया, आपके पास ये एलिमेंट आ गया. यहाँ क्या चाहिए 1, तो इसको 0 बनाना 1 बनाना है, मल्टीप्लाई कर दी -1 से. ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये एलिमेंट 1 बन गया, तो उसके बाद इसके ऊपर वाले दोनों एक साथ 0 बनाने हैं इसी के हेल्प से. ठीक, और उसके बाद जैसे ये 0 बन गए, मतलब 2 प्रॉपर्टी के साथ हमेशा इसी थर्ड रो की हेल्प लेनी है. देखो दोनों जगह थर्ड रो की हेल्प, R1 के लिए भी R2 के लिए भी. ठीक है, और फिर बच गया यहाँ वाला एलिमेंट. तो उसके बाद लास्ट टारगेट फिर इसको 0 करना है. तो मैंने हर जगह अंडरलाइन किया हुआ है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए. और इस तरह ये आइडेंटिटी फॉर फ्रेम हो गई. जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड लगेगा वो राइट भी लगेगा, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये प्री फैक्टर में लगेगा. तो बेटा एक पॉइंट मैं ये आपको फिर क्लियर कर दूं. क्या टारगेट बताया कि सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना, उसके बाद इस एलिमेंट को 0 बनाना. क्लियर हो गया. फिर क्योंकि यहाँ 0 चाहिए हमें, फिर ये 0 बनना चाहिए, आपका 0 नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ चले जाना, इस एलिमेंट को 1 ही बनाना है. तो अभी तो 1 ही है, मतलब क्योंकि ये चाहिए. उसके बाद इस एलिमेंट को आपने इधर आना है, क्या चाहिए यहाँ 0 चाहिए.
उसके बाद मैंने बताया इधर चले जाओ, इसको क्या बनाओ 1, फिर इधर चले जाओ 0, फिर ये 0, ठीक है। पर मैंने बताया दोनों को एक साथ भी बना लो, एक एक करके बनाने हो वो भी है। और उसके बाद आपने यहाँ आना है लास्ट में, इसको 0 बनाना। तो आई थिंक अंडरस्टैंड कर लिया हमने। ये ऑर्डर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये करना है, WC फॉर्मेशन कह दूं मैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके, है ना, थोड़ा सा घूम एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में घूम गए। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ नहीं गए, पहले ये 1 बनाना, फिर इसी 1 की हेल्प से 0 बनेगा, फिर जब ये 0 इसको 1 बनाओ, फिर इस 1 की हेल्प से ये दोनों 0 बनेगी और इस 1 की हेल्प से ये 0 बन जाएगा। तो बुक में सम टाइम आगे पीछे ऑपरेशन दिए होते हैं। अगर आपने यूनिफॉर्मिटी अपनी रखनी है तो आपको बेटा इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा। और जब कॉलम ऑपरेशन करने होंगे तो कॉलम में आपका ऑपरेशन कि पहले इसको 1, फिर यहाँ 0 इसी की हेल्प से, फिर यहाँ 0, ठीक है, इसी की हेल्प से, मतलब यहाँ को बनाओ। जैसे ये बन गया, फिर यहाँ 1, बिल्कुल वही वे, फिर यहाँ 0, क्लियर हो गया। और उसके बाद यहाँ 1, फिर ये 0 और ये 0 और फिर ये 0, मतलब यहाँ से आप आए यहाँ से 0, इसको बनाएंगे, इसकी हेल्प से इसके बाद इसको 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से ये 0 बनेगी, फिर ये 0 बनेगी और फिर ये 0 बनेगी। तो ये देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर हुआ और यहाँ क्लॉकवाइज ऑर्डर हुआ। इस रूल को फॉलो करेंगे, सबका यूनिफॉर्मिटी में एक तरह से ही क्वेश्चन आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये इजी वे है। आई होप you will understand this, so do.